Hello students, today our topic is pile foundation. In this we discuss about what is the pile foundation, where is it is necessary and advantage of the pile foundation. Also we are discussing about the classification of pile foundation. What are the different types of pile according to their use and their construction we are discuss in this video. So let's start with definition. तो pile foundation. Pile foundation is a type of deep foundation. तो pile foundation एक deep foundation का type है. They are formed by long slender columns. Usually they are formed of long cylinder shape columns. Element typically made of steel or reinforced concrete or sometimes timbers. A foundation is described as pile when its depth is more than 3 times of its width. So a foundation is called to pile foundation if its depth is equals to 3 times of its width or more than 3 times of its width. So pile foundation are usually used for a large structure in a situation where the soil at shallow depth is not suitable to resist excess settlement, resist uplift pressures etc. तो पाइल फाउंडेशन कहाँ यूज़ आती है? पाइल फाउंडेशन यूजुअली वहाँ यूज़ आती है जहाँ का स्ट्रक्चर काफ़ी लार्ज हो, हैवी स्ट्रक्चर हो, लोड्स की कैलकुलेशन ज़्यादा है, मतलब लोड्स काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं जहाँ पे, और ऐसी सिचुएशन जहाँ पे क्या है सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी नहीं है, मतलब उसकी बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, उसमें सेटलमेंट बहुत ज़्यादा होता है और जो सॉइल है वो सॉफ्ट है, क्ले है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेसिव सेटलमेंट हो रहा है, एप्लिफ्ट प्रेशर है वो सही से रेजिस्ट नहीं कर पा रही. तो इन दैट केस द construction of the pile foundation is usually used in the construction as compared to the other type of foundation. So when to use pile foundation, then the following situation are when pile foundation system can be useful. So first of all, when the groundwater table is high. If the groundwater table is high, then it make the effect on the characteristics of the soil, bearing capacity of the soil. So if the groundwater table is high, then we use the pile foundation instead of the shallow foundation. Next, when the heavy and ununiform loads from superstructure are imposed. If the structure is complicated and there was a number of loads which is act ununiformly, then in that case the structure should be in danger if the other type of foundation is used. So in that case we use the pile foundation instead of the other type of foundation. Third one, the other type of foundation are costly or not feasible. This is also a type when the other type of foundation is not useful at the construction site. तो pile foundation obviously वहाँ पे एक good idea. Next one, when the soil at a shallow depth is compressible. Compressible means when the load is applied on the structure through the foundation, and the foundation is distribute the load to the soil. So if the load which is act on the underneath soil and the soil is going to compress, if the soil is going to compress, excessive settlement is occur below the foundation, and this is a very hazardous situation for any structure. So when the soil is compressible, we use the pile foundation instead of any other type of foundation. Next one, when there is a possibility of scoring due to its location near the river bed or seashore. If the building is constructed near a water body, so there is a chance that the water may score out the soil with its water. कोई भी स्ट्रक्चर है जो कि कोई भी पानी की वाली जगह जैसे रिवर है या सी साइड एरिया है, तो क्या होता है, वाटर की टेंडेंसी होती है वो अपने साथ में सॉइल को स्कोर आउट करके लेके जाता है. तो इफ़ द सॉइल इज स्कोर आउट इजीली, then the foundation can also be damaged because of the water. So in that case we use the pile of foundation. And next one is when there is a canal or deep drainage system near the structure. Yes, this is also a water effect.
when the canal is near, we know that because of the canal there is a huge effect of seepage on the structure near by the canal. जहाँ से भी कैनाल निकलती है वो अक्सर वहाँ की आसपास की जब हम सॉइल को टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज द सीपेज इज़ रेगुलरली फ्लो फ्रॉम सीपेज वाटर इज़ रेगुलरली फ्लो फ्रॉम द कैनाल बेड एंड द साइड्स ऑफ द कैनाल. सो अगर कोई स्ट्रक्चर है जो कैनाल के आसपास है या कोई ड्रेनेज सिस्टम के आसपास है तो वहाँ पे और कोई फाउंडेशन का इस्तेमाल करने के बजाय हम पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर द स्ट्रक्चर and it resist the drainage. Next one is the when the soil is excavation is not possible up to a desired depth due to poor soil condition. सेम है, अगर सॉइल की कंडीशन क्या है वो उतनी अच्छी नहीं है तो एक्सकेवेशन भी नॉट पॉसिबल नहीं होगा. तो इन दैट केस वी यूज़ द पाइल फाउंडेशन इंस्टेड ऑफ द अदर टाइप ऑफ फाउंडेशन वेयर एक्सकेवेशन इज needed. Next, when it becomes impossible to keep the foundation trench dry by pumping or by pumping any other measure due to heavy inflow of seepage. If the seepage flow is very high in the underground, then it is impossible to keep the foundation trench dry. अगर कोई भी soil कोई भी foundation है below the ground, if the seepage water is there, seepage flow is there, भी तो ये क्या करेगा, इसकी स्ट्रक्चर को ऑलवेज वेट रखेगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके धीरे धीरे क्या होगा, डिटोरेशन चालू हो जाएगा फाउंडेशन के अंदर और इसकी वजह से क्या होगा, फाउंडेशन वीक हो जाएगी और स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी फेल. तो इन दैट केस वी यूज़ द पाइल फाउंडेशन फॉर द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर. तो दीज आर द फॉलोइंग कंडीशन वेयर द पाइल फाउंडेशन इज यूजफुल इन के instead of the other type of foundation. So next we go to the classification of the pile foundation. The pile foundation can be classified based on the function and material and installation process, etc etc. Following are the type of pile foundation used in the construction. So there are the mostly we classified it in two types. First, based on the function or use. तो किस काम की वजह से हम फाउंडेशन को यूज़ ले रहे हैं, पाइल फाउंडेशन को, तो उसकी वजह से इसका क्लासिफिकेशन होगा. उसमें कौन से हैं, सीट पाइल्स है, लोड बेयरिंग पाइल्स है, एंड बेयरिंग पाइल्स है, फ्रिक्शंस पाइल्स है, सॉइल कॉम्पैक्टर पाइल एंड टेंशन और अपलिफ्ट पाइल्स. तो यूजेज बेस्ड ऑन द फंक्शन और यूज विच मे बी डिस्क्राइब इन दिस क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द मटीरियल एंड कंस्ट्रक्शन मेथड. तो किस टाइप का मटेरियल यूज़ आ रहा है और किस टाइप का कंस्ट्रक्शन मेथड यूज़ आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एज ए टिम्बर पाइल, कंक्रीट पाइल, स्टील पाइल एंड कंपोजिट पाइल. तो दीज आर द ब्रॉडली क्लासिफिकेशन ऑफ द पाइल फाउंडेशन. द फॉलोइंग डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड पाइल फाउंडेशन टाइप डिस्कस अबव. So these are the diagram. You can see in this diagram and easily understand the classification of the pile foundation. First is based on the function of use: sheet piles, load bearing piles, end bearing piles, friction piles and soil compactor piles. Next, based on the material construction: timber pile, concrete pile, steel pile, composite pile. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द फंक्शन और यूज. सो बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द पाइल बेस्ड ऑन द फंक्शन और यूज. सबसे पहला हमारा है शीट पाइल. दिस टाइप ऑफ पाइल इज़ मोस्टली यूज टू प्रोवाइड लेटरल सपोर्ट. तो ये जैसे कोई पाइल फाउंडेशन है, ये स्ट्रक्चर से लोड आ रहा है, ये पाइल फाउंडेशन है, ये ग्राउंड लेवल है. तो शीट पाइल्स कहाँ पे यूज़ आती है, जहाँ पे क्या होना है, लेटरल प्रेशर को रजिस्ट करना है, नॉट लॉन्गिट्यूडनल. लेटरल प्रेशर को जहाँ पे रजिस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे शीट पाइल्स का इस्तेमाल होता है. और लेटरल प्रेशर किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर. दीज आर यूजुअली यूज्ड फॉर कॉफर डैम्स, ट्रेंच शीटिंग, शोर प्रोटेक्शन एक्सेट्रा. तो ये कुछ सिचुएशंस होती है जो कुछ कंस्ट्रक्शन होते हैं, या जैसे कि कॉफर डैम है, ट्रेंच शीटिंग है, या कोई शोर प्रोटेक्शन वाला एरिया है, उसके शोर प्रोटेक्शन के काम में यूज़ आती है. They are not used for providing vertical support to structure. They are usually used as server following purpose.
शीट पाइल्स को आप जिस तरह से डायग्राम में दे सकते हैं, ये इंस्टॉलेशन ऑफ द शीट पाइल कुछ इस तरह से दिखती है। तो क्या है, आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर के पास में क्या है, वाटर है। इस वाटर को रजिस्ट करने के लिए क्या हो रहा है, शीट पाइलिंग करी जा रही है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इंस्टॉलेशन ऑफ द शीट पाइल कैसे मशीन से डायरेक्टली इसको सॉइल के अंदर इंस्टॉल किया जा सकता है। तो शीट पाइल्स का होता है यूज़ आता है फॉलोइंग पर्पस। इसके क्या होता है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिटेनिंग वॉल्स, नेक्स्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम द रिवर बैंक इरोजन। का स्ट्रक्चर है उसको क्या करना है, रिवर से जो वाटर आ रहा है उसकी वजह से जो इरोजन ना उसको उससे प्रोटेक्शन करने के लिए। नेक्स्ट रिटेन द सॉइल अराउंड द फाउंडेशन ट्रेंच। तो क्या होता है, जैसे ये आपका स्ट्रक्चर है, इसके आसपास क्या है, वाटर बॉडी है, रिवर है, कुछ आसपास सी है, तो आप क्या करेंगे, उसके चारों तरफ क्या प्रोवाइड करा देंगे, शीट पाइल्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ये स्ट्रक्चर है और इसकी जो फाउंडेशन है उसको ये वाटर इफेक्ट ना करे। तो रिटेन द नेक्स्ट क्या होता है, रिटेन द लूज सॉइल अराउंड फाउंडेशन ट्रेंच। नेक्स्ट फॉर आइसोलेशन ऑफ फाउंडेशन फ्रॉम एडजेसेंट सॉइल। इसके अलावा हम इसको वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ वाटर तो नहीं है, लेकिन क्या करना है हमको, हमारी फाउंडेशन को जो आसपास की जो सॉइल है, एडजेसेंट सॉइल है, उससे क्या करना है, सेपरेट आउट रखना है। तो हम आइसोलेशन करना है तो अभी हम शीट पाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, फॉर कन्फाइनमेंट ऑफ सॉइल एंड दस इंक्रीज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो यही बस शीट पाइल का इस्तेमाल होता है जब स्ट्रक्चर को क्या करना है, सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है उसके नियर बाय एरिया से। तो शीट पाइल का इस्तेमाल कहाँ पर यूज आता है, आपने देख लिया। नेक्स्ट होता है एंड बेयरिंग पाइल्स। एंड बेयरिंग पाइल्स क्या होता है, एंड बेयरिंग पाइल्स आप डायग्राम में देख लीजिए, एक डायग्राम है ये वाला एंड बेयरिंग पाइल्स का। तो आप देख सकते हैं पाइल है, ये जस्ट फाउंडेशन के नीचे कैसी सॉइल है, स्ट्रक्चर के नीचे लूज सॉइल है, और हार्ड सॉइल क्या है, वो एक ग्रेटर डेप्थ के बाद में एक लेयर है हार्ड सॉइल की। तो अगर पाइल को हम यहाँ पे लूज सॉइल के अंदर छोड़ देंगे तो इससे क्या होगा, स्ट्रक्चर को डैमेज हो सकता है, स्ट्रक्चर फेल भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस एंड बेयरिंग पाइल्स का मतलब यूज़ आता है, इनको हम वहाँ पे रेस्ट करते हैं जहाँ पर क्या हार्ड स्टार्टा हो, जैसे कि रॉक और अदर टाइप ऑफ हार्ड स्टार्टा। तो इन दिस टाइप ऑफ पाइल्स द लोड पासेस थ्रू द लोअर टिप ऑफ द पाइल। तो इस टाइप की जो ये है एंड बेयरिंग पाइल, उसके अंदर लोड ट्रांसफ़र कहाँ से होता है, लोअर टिप। ये देखें आप नीचे वाला इलाका, इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसका लोअर पार्ट कैसा है, नुकीला है, टिप है। तो जो लोड ट्रांसफ़र होगा वो कहाँ से होगा, लोअर टिप से। इस पॉइंट से जो स्ट्रक्चर से जो लोड आ रहा है वो लोअर टिप से ट्रांसफ़र होगा। एंड द बॉटम एंड ऑफ द पाइल रेस्ट ऑन ए स्ट्रॉन्ग लेयर। द बॉटम, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, द बॉटम प्लेन एंड ऑफ द पाइल रेस्ट ऑन ए स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ सॉइल और रॉक। Usually the pile rests at a transition layer of a weak and strong layer. As a result, the pile act as a column and safely transfer the load to the strong layer. इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर कोई भी सॉइल है, कोई भी स्ट्रक्चर है, वो क्या कर रहा है, एक लूज सॉइल के ऊपर क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ कराएंगे, एंड बेयरिंग पाइल्स का। एंड बेयरिंग पाइल्स कहाँ पे रेस्ट होती है, जहाँ पे क्या हो, हार्ड स्टार्टा हो, मतलब जो लेयर है सॉइल की वो कैसी हो, हार्ड हो। तो उसमें क्या करेगा, जो पूरी जो लेंथ है इस पाइल की, ये कैसे एक्ट करेगी, ये एक्ट ऐसे करेगी जैसे कि एक कॉलम एक्ट करता है। तो इस कॉलम कैसे क्या एक्ट करता है, कॉलम में एक्ट करता है, और कॉलम क्या करता है, कॉलम क्या करता है, स्ट्रक्चर का जो लोड होता है वो अपने नीचे वाले फाउंडेशन की ओर ट्रांसफ़र करता है। तो ये जो पूरी पाइल है यहाँ तक, ये कैसे एक्ट करेगी, एज ए कॉलम इफेक्ट करेगी, और जो लोड होगा वो फिर बाद में इसके टिप से नीचे हार्ड सॉइल की ओर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये इसका मेन पॉइंट होता है एंड बेयरिंग पाइल्स का, इसकी पूरी पाइल्स कैसे एक्ट करती है, कॉलम की तरह, और जो लोड है वो पास होता है उसके लोअर टिप से। द टोटल कैपेसिटी ऑफ द एंड बेयरिंग पाइल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द एरिया ऑफ द टिप ऑफ द पाइल एंड द बेयरिंग कैपेसिटी
ऑफ एट द पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ सॉइल एट विच द पाइल रेस्ट। तो उसकी जो कितनी डेप्थ होनी चाहिए वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब डिपेंड करता है कि सॉइल की कैसी कैपेसिटी है, बेरिंग कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। उसके अलावा कितनी लेंथ के, कितनी हाइट के, डेप्थ के अंदर हार्ड सॉइल अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कंसिडरिंग ए रीजनेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी द डायमीटर ऑफ द पाइल इज कैलकुलेटेड। तो सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑल्सो यूजफुल व्हेन to calculate the diameter of the pile. So these are the end bearing piles. The third one is the friction piles. फ्रिक्शन पाइल्स, फ्रिक्शन से आप समझते हैं, फ्रिक्शन मतलब घर्षण। तो फ्रिक्शन कैसा होता है, दो अलग अलग, जैसे कोई दो अलग अलग मटेरियल है तो उनके बीच में कैसा होगा, फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पे सॉइल के अंदर क्या, यहाँ पे जब हम फाउंडेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट तो हो गई ये पाइल और सेकंड हो गई इसकी आसपास की एडजेसेंट सॉइल। इसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा जो कि क्या करेगा, इस पाइल को और ज़्यादा क्या सफिशिएंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। तो फ्रिक्शन पाइल का क्या होता है, फ्रिक्शन पाइल ट्रांसफर द लोड from the structure to the soil by frictional force between the surface and the pile। तो फ्रिक्शन पाइल क्या होती है, लोड कैसे ट्रांसफ़र करती है स्ट्रक्चर से सॉइल के अंदर, बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो इसकी वजह से इसका नाम होता है फ्रिक्शन पाइल। तो पाइल एट द सॉइल सराउंडिंग द पाइल सच एज क्ले एंड सैंडी सॉइल। तो ये मोस्टली कहाँ पे यूज़ आती है, जहाँ पे कैसी सॉइल हो, स्टिफ क्ले टाइप सॉइल हो या सैंडी सॉइल हो, तो वहाँ पे फ्रिक्शन पाइल कैन ऑल्सो बी वेरी यूजफुल। फ्रिक्शन कैन बी डेवलप्ड फॉर द इंटायर लेंथ ऑफ द पाइल और डिफाइनाइट लेंथ ऑफ द पाइल। तो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो पाइल की कहाँ, ये सतह पे डेवलप होता है। ये इसकी पूरी इंटायर लेंथ पे भी डेवलप हो सकता है, या हम इसको क्या करें, हम इसको सेट भी कर सकते हैं कि ये कितनी लेंथ तक ये फ्रिक्शन फोर्स इसकी पाइल पे एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शन कैसे डेवलप होता है, इन फ्रिक्शन पाइल जनरली द इंटायर सरफेस ऑफ द पाइल वर्क्स टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द सॉइल। द सरफेस एरिया ऑफ द पाइल मल्टीप्लाइड बाय द सेफ फ्रिक्शन फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द पाइल। तो उस कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो भी हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय पर यूनिट एरिया। While designing the screen friction pile, the screen friction to be developed at a pile surface should be sincerely evaluated and a reasonable factor of safety should be considered। एक reasonable factor of safety को हमको माइंड में रखना है जब हम पाइल को प्लेस कर रहे हैं, जब भी पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। Beside this, one can increase the pile diameter, number of piles and make pile surface rough to increase the capacity of the pile। तो क्या होता है, हमको कैलकुलेट करना है कितना लोड है, कितना हमको लोड की सेफ्टी कितनी चाहिए। तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, पाइल का हमको कितना डायमीटर देना है, पाइल की डेप्थ कितनी देनी है, कितनी नंबर ऑफ पाइल्स यूज़ करनी है। और इसके अलावा क्या होता है, तो पाइल की सरफेस को कितना ज़्यादा रफ़ करना है। जितना ज़्यादा रफ़ करेंगे उतना ही ज़्यादा पाइल और आसपास की सॉइल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रक्चर को क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा। तो फ्रिक्शन पाइल्स आप समझ गए। तो ये है एंड बेरिंग पाइल्स और फ्रिक्शन पाइल। एंड बेरिंग पाइल एक हार्ड स्ट्राटा के ऊपर रेस्ट करती है। लोअर टिप लोअर टिप से लोड ट्रांसफ़र होता है, बाकी पूरी लेंथ कैसे एक्ट करती है, एज ए कॉलम। वहीं फ्रिक्शन पाइल्स में क्या होता है, पूरी सरफेस कैसी होती है, रफ़, और ये सपोर्ट कैसे करती है, बाय फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स किसके बीच में होता है, पाइल्स में और उसके आसपास की सॉइल के बीच में। नेक्स्ट होता है सॉइल कॉम्पैक्टर पाइल्स। सॉइल कॉम्पैक्टर पाइल्स आर यूज समटाइम पाइल्स आर ड्राइवन एट ए क्लोज्ड इंटरवल टू कॉम्पैक्ट पाइल यूज टू compact granular soil to increase the bearing capacity of soil by compacting. We know that because of the compaction, if compaction is applied on the soil, then the soil particles are come near to each other. तो जब सॉइल के पार्टिकल एक दूसरे के ज़्यादा पास आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज
स्टेट के अंदर आएंगे तो उनकी बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, ये हम जानते हैं। तो सॉइल कम्पैक्टर पाइल्स क्या काम आती है? सॉइल कम्पैक्टर पाइल्स ये इस तरह काम आती है कि इसका काम होता है कि लूज़ ग्रेनुलर सॉइल है अगर कोई साइड पे, तो वहाँ पे हम सॉइल कम्पैक्टर पाइल्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो, सो सॉइल है उसका कंपैक्शन हो जाए और उसकी बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी पाइल्स होती है, वो आपस में बहुत ही पास मतलब उनके बीच का जो इंटरवल होता है, स्पेसिंग होती है, वही बहुत कम होती है। तो बहुत क्लोज स्पेसिंग के अंदर क्या करते हैं, पाइल्स को हम सॉइल के अंदर प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल के अंदर कंपैक्शन होने लग जाता है और सॉइल की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो कॉम्पैक्शन पाइल का क्या काम आता है? फॉर कॉम्पैक्शन पाइल देमसेल्फ नॉट कैरी एनी लोड। तो इसका ये कोई तरह का लोड कैरी नहीं करते, लेकिन ये कॉम्पैक्शन करते हैं। तो जब ये कोई तरह का लोड कैरी नहीं करते तो हम इसको किसी भी वीकर टाइप ऑफ मटेरियल लाइक सॉइल से भी बना सकते हैं। जो कॉम्पैक्टर पाइल्स होती है वो क्या होती है, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, इतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती, क्योंकि उसका काम क्या होता है, सिर्फ कॉम्पैक्शन करना, ना कि किसी तरह के लोड को कैरी करना। ठीक है, तो ये हो गई सॉइल कॉम्पैक्टर पाइल्स। ये इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, ये कॉम्पैक्शन फोर्स लगा रही है सॉइल के ऊपर दोनों पाइल्स, और ये सब क्या है, आपस में एक दूसरे के काफ़ी क्लोजली प्लेस्ड होती है। नेक्स्ट होता है टेंशन पाइल। टेंशन पाइल, तो टेंशन पाइल और इसका नेक्स्ट एक और नाम होता है अपलिफ्ट पाइल। दे आर प्रोवाइडेड टू एंकर डाउन। एंकर डाउन मतलब नीचे की तरफ झुकाना। द स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू अपलिफ्ट प्रेशर ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ड्यू टू ओवरटर्निंग। जैसे कोई स्ट्रक्चर है, उसके आसपास में कोई वाटर है, उसका लेवल क्या है, हाई है काफ़ी, तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे टेंशन पाइल्स प्रोवाइड करा रहे हैं। टेंशन पाइल्स का काम क्या होता है कि स्ट्रक्चर को क्या करना, नीचे की तरफ टर्निंग डाउन करना किसी भी स्ट्रक्चर को। क्या हम जानते हैं कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, वो ऊपर की डायरेक्शन में लगता है, तो इसकी वजह से क्या करता है, जो ये स्ट्रक्चर होता है वो क्या ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो हम टेंशन पाइल किस लिए प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि क्या हो, स्ट्रक्चर वापस नीचे की ओर मूव करे, जिससे क्या हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी रहे। अपलिफ्ट प्रेशर जो लग रहा है वाटर की वजह से, उसको काउंटर एक्ट करने के लिए हम क्या कराते हैं, टेंशन पाइल्स यूज़ कराते हैं। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल बेस्ड ऑन द यूज़, किस यूज़ के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल बेस्ड ऑन द मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के मेथड। कंस्ट्रक्शन के मेथड के हिसाब से और मटेरियल के हिसाब से हम पाइल को कितने कितने अलग अलग तरीक़ों में बांट सकते हैं, कैसे कैसे क्लासीफाइड कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो प्राइमरली piles can be classified into two parts. फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट पाइल एंड सेकंड इज नॉन डिस्प्लेसमेंट, और एक और नाम होता है इसका क्या, रिप्लेसमेंट पाइल। तो फर्स्ट इज रिप्लेसमेंट एंड सेकंड इज नॉन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो पाइल विच कॉज द सॉइल टू बी डिस्प्लेस्ड वर्टिकली एंड रेडियली as they are driven to the ground is known as displacement pile. In case of replacement pile, the ground is bored and the soil is removed and then the resulting hole is either filled with concrete or precast concrete pile is inserted. तो समझ सकते हैं, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जैसे ये पाइल को आप क्या करेंगे, सीधा सॉइल के अंदर क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे बाय एनी मशीनरी। आप क्या करेंगे, सॉइल को अंदर की तरफ, पाइल को अंदर सॉइल की तरफ कैसे करेंगे, ड्राइव करेंगे। ठीक है, वहीं पे जो नॉन डिस्प्लेसमेंट होगा या रिप्लेसमेंट होगा, उसका दूसरा नाम क्या होता है, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, जैसे हमको यहाँ पे जैसे कि हमको क्या करना है, सॉइल के अंदर क्या करना है, पाइल को कास्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया की क्या करेंगे, सॉइल को एक्सकवेट करेंगे, खोदेंगे और यहाँ से हम सॉइल को बाहर निकालेंगे। देन वी पुट द पाइल इन द होल एंड कास्ट द पाइल बाय कंक्रीट, और ए प्री कास्ट कंक्रीट पाइल इज ऑल्सो इंसर्टेड। तो क्या होगा, रिप्लेसमेंट पाइल में क्या होता है, रिप्लेसमेंट वाले मेथड में क्या होता है कि आप क्या करेंगे, जो सॉइल है उसको डिग आउट करेंगे और उस जगह पे हम क्या करेंगे, सॉइल की जगह पे हम किसको रिप्लेस करेंगे, पाइल को
किसी भी मेथड से रिप्लेस कर सकते हैं। या तो हम कास्ट इन सीटू कंक्रीट पाइल बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट कंक्रीट प्लेस करेंगे और वहाँ पाइल का मैन्युफैक्चरिंग होगी, पाइल वहाँ पे बनेगी। या हम क्या कर सकते हैं, बनी बनाई पाइल या प्रीकास्ट पाइल को भी उसकी सॉइल की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट मेथड। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल पाइल कंस्ट्रक्शन आर देयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस लोड बेयरिंग पाइल कैन बी ऑल्सो बी क्लासिफाइड। तो अब हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन द मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन मेथड। और सबसे पहली होती है टिम्बर पाइल। इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है अनट्रीटेड, एक होती है ट्रीटेड विद प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट कंक्रीट पाइल तो होता है प्री कास्ट और कास्ट इन सीटू। प्री कास्ट क्या होता है, कई फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर हुई हुई पहले से बनी बनाई पाइल्स को हम लेके आएँ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन साइट पे और उसको प्लेस कर दें। दूसरी होती है कास्ट इन सीटू। कास्ट इन सीटू या कास्ट इन प्लेस पाइल, इसका मतलब क्या होता है, हम क्या वहाँ पे सॉइल को डिग आउट किया, वहाँ पे हमने क्या करा, आसपास केस बनाया और फिर उसके अंदर कंक्रीट को फिल किया और उसको फिर कुछ दिनों तक क्योरिंग करी। तो वहाँ पे क्या हो, पाइल का कंस्ट्रक्शन हो गया, पाइल का वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो गया और वहीं पे पाइल इस्तेमाल आ गई। नेक्स्ट होता है स्टील। स्टील के अंदर क्लासिफाइड होता है आई सेक्शन और होलो पाइल्स। एक तो होती है आई सेक्शन टाइप की, आपने देखा होगा कुछ इस तरह से होती है, एक होती है होलो। तो स्टील पाइप्स कैसी, स्टील पाइल्स कैसी होती है, दो टाइप की। नेक्स्ट होता है कंपोजिट पाइल। कंपोजिट पाइल ये मतलब, कंपोजिट का मतलब होता है एक से ज़्यादा मटेरियल को मिलाकर कोई चीज़ बनाना। तो कंपोजिट पाइल कैसे डिफाइंड होती है, डिस्क्राइब है जैसे एक टिम्बर और प्रीकास्ट कंक्रीट, वुड के साथ में कंक्रीट का इस्तेमाल। नेक्स्ट होता है स्टील के साथ कास्ट इन सीटू कंक्रीट। तो कास्ट इन सीटू मतलब कंक्रीट को वहीं पे प्लेस किया गया है, स्टील पाइल के साथ में कंक्रीट और एक बार टिम्बर पाइल के साथ में कंक्रीट। तो ये है बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल और मेथड। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट टिम्बर पाइल्स। टिम्बर पाइल्स आर यूज्ड अंडर द वाटर लेवल। दे लास्ट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स। तो जो टिम्बर पाइल्स की मोस्टली जो एज होती है वो अराउंड कितनी होती है, 30 ईयर्स। दे कैन बी रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। तो टिम्बर पाइल्स कैसे हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और सर्कुलर भी हो सकती है। देयर डायमीटर और साइज कैन वेरी। डायमीटर और साइज़ क्या हो सकता है, 12 से 16 इंच तक वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ एंड द लोड्स। द लेंथ ऑफ द पाइल इज़ यूजुअली 20 टाइम्स ऑफ द टॉप विड्थ। जो पाइल की जो लेंथ है वो उसकी टॉप विड्थ की कितनी होनी चाहिए, लगभग अराउंड 20 टाइम्स। ओके, दीज आर यूजुअली डिज़ाइन फॉर 15 to 20 टन्स। मैक्सिमम लोड कैपेसिटी कितनी है, 15 to 20 टन्स। Additional strength can be obtained by bolting fish plates to the sides of the pile. You see in this diagram, this fish plates is attached to the timber pile. ये timber pile है तो इसके आजू बाजू में हमने क्या करा है, फिश प्लेट्स प्रोवाइड करा दी है फॉर एडिशनल सेफ्टी और एडिशनल स्ट्रेंथ। तो इस तरह से होती है टिम्बर पाइल। इसका जो बॉटम एज होता है वो कैसा होता है, एकदम तीखा होता है, टिप होता है, ये टेपर सरफेस। और ये क्या होता है, कास्ट आयरन शोर। नीचे जो होता है क्या होता है, आयरन, कास्ट आयरन शोर हम प्रोवाइड करा दें ताकि क्या हो, सॉइल के अंदर जब हम इनको ड्राइव करें तो ये क्या ईज़िली नीचे की तरफ चली जाए, मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं हो, सॉइल के अंदर ये ईज़िली कास्ट हो जाए, ईज़िली ड्राइव हो जाए। तो उसके लिए हम नीचे इसके बॉटम जो टिप है वो कैसी प्रोवाइड कराते हैं, कास्ट आयरन की। तो these are timber piles. So the advantage of the timber pile, तो फर्स्ट ऑफ एडवांटेज timber piles are regular size available. अलग अलग साइज़ के हिसाब से टिम्बर पाइल ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं। ईजिली तो नहीं कह सकते लेकिन अलग अलग साइज़ के हिसाब से हम इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिकल हो सकते हैं जहाँ पे वुड ईजिली अवेलेबल है, ईजी टू इंस्टॉल, लो पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज। टिम्बर पाइल्स कैन बी कट ऑफ एट एनी डिजायर्ड लेंथ आफ्टर दे आर इंस्टॉल्ड। तो हम क्या इंस्टॉलेशन के बाद भी इसकी साइज़ को वेरी कर सकते हैं, कटआउट जैसे हमको जितनी डेप्थ चाहिए पाइल की उतनी रख सकते हैं, बाकी हम कट करके हटा भी सकते हैं। इफ़ नेसेसरी टिम्बर पाइल्स कैन बी ईजिली पुल्ड आउट। जब हमको टिम्बर पाइल्स को हटाना है तो जो अदर टाइप की जैसे पाइल्स होती है, जैसे कंक्रीट है, स्टील है, तो उनको क्या, उनका डी इंस्टॉलेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बट टिम्बर पाइल्स का डी इंस्टॉलेशन काफ़ी ईजिली होता है। जब भी हमको इनको निकालना था हम इनको ईजिली वापस सॉइल में से निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गए एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, पाइल्स ऑफ
दिस पाइल्स ऑफ लॉन्गर लेंथ आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल. सो क्या होता है, ज़्यादा लेंथ की पाइल की ज़रूरत है तो ईजिली इतने भी ईजिली अवेलेबल नहीं होती. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन स्ट्रेट पाइल इफ़ द लेंथ इज़ शॉर्ट. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्राइव द पाइल इन इफ़ द सॉइल स्टार्ट आर वेरी हार्ड. ये इसका मेन डिसएडवांटेज है कि अगर क्या है, सॉइल कैसी है, हार्ड है. हार्ड मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई रॉक सॉइल है या स्टिफ सॉइल है, तो उसमें क्या होगा, जब हम इसको नीचे की तरफ ड्राइव करेंगे तो ये क्या ईजिली क्या है, पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी हार्ड सॉइल को. तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका इंस्टॉलेशन कैसा हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, स्पाइसिंग ऑफ टिम्बर पाइल इज़ डिफ़िकल्ट. वी नो दैट टिम्बर और वुडन पाइल्स आर नॉट सूटेबल टू बी यूज्ड एज एंड बियरिंग पाइल्स. तो टिम्बर और वुडन पाइल्स को हम कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, एज ए एंड बियरिंग पाइल्स. एंड बियरिंग पाइल्स हमने अभी पढ़ा है. For durability of timber piles, special measures have to be taken. For example, wooden piles are often treated with preservative. We know that the timber can also be defected because of the termites. तो सबसे पहले तो क्या होगा, टिम्बर पाइल्स को हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रीट करना पड़ेगा प्रिजर्वेटिव से, फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए फाउंडेशन. तो इस वजह से इसका थोड़ा सा यूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. हमको उसका क्या, अदर प्रिजर्वेटिव ऑल्सो यूजफुल एंड दिस मेक द कॉस्ट हाई. तो ये हो गए टिम्बर पाइल्स, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज. नेक्स्ट होता है कॉन्क्रीट पाइल्स. कॉन्क्रीट पाइल्स वी नो दैट वी सी मैनी टाइम्स कॉन्क्रीट पाइल इन द फील्ड. सो इसको भी हम दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. पहला होता है प्री कास्ट और दूसरा होता है कास्ट इन सीतू. तो कॉन्क्रीट पाइल्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. प्री कास्ट क्या होता है कि कोई भी प्री कास्ट पाइल है जो कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या यूनिट में रेडी हुई है, उसको आप कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके आए, फिर आपने मशीनरी की हेल्प से उसको क्या किया, सॉइल के अंदर प्लेस कर दिया. तो ये होती है प्री कास्ट पाइल. द प्री कास्ट पाइल इज़ कास्ट इन पाइल बेड और इज़ द हॉरिजेंटल फॉर्म इफ़ दे आर रेक्टेंगुलर इन शेप. यूजुअली सर्कुलर टाइप ऑफ प्री कास्ट पाइल इज़ यूज्ड and precast piles are usually reinforced with steel to prevent breakage during its mobilization. तो जो प्रीकास्ट पाइल होती है उसका मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही हम उसमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, रेनफोर्समेंट, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए. एंड लोकेशन ऑफ द फाउंडेशन आफ्टर द पाइल आर कास्ट, क्यूरिंग हैज़ टू बी परफॉर्म्ड एज पर स्पेसिफिकेशन. जब मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जहाँ पे पाइल का मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहाँ पे एक बार जब पाइल बन के तैयार हो जाती है तो लगभग 21 से 28 दिन तक उसकी क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं. उसके बाद वो पाइल को यूज़ में लिया जा सकता है. तो सबसे पहले आप देख ही सकते हैं डायग्राम में कैसे प्रीकास्ट पाइलिंग का मशीनरी की हेल्प से इनको ड्राइव आउट किया जाता है नीचे की तरफ. एडवांटेजेस क्या है प्रीकास्ट पाइल के, तो एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल क्रैक्स. जैसा कि टिम्बर्स में होता है कि उसमें क्या है, केमिकल और बायोलॉजिकल डिफेक्ट्स होते हैं, तो ऐसा कंक्रीट में नहीं होता. और क्योंकि प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल का होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तैयार की जाती है, तो इनमें अलग तरह की स्पेसिफिकेशन होती है कि ये हाईली रजिस्टेड होती है केमिकल और बायोलॉजिकल इफेक्ट से. तो इनमें क्रैक भी डेवलप नहीं होते. दे आर यूजुअली ऑफ हाई स्ट्रेंथ. टू फैसिलिटेट ड्राइविंग ए पाइप में बी इंसर्टेड अलॉन्ग द सेंटर ऑफ द पाइल. तो ईजिली इसको हम क्या, ईजिली हमको ड्राइव करना है नीचे की तरफ, तो हम क्या कर सकते हैं, एक पाइप को साथ में इंस्टॉल कर सकते हैं अलॉन्ग द सेंटर ऑफ द पाइप, और ईजिली हम उसको नीचे की तरफ ड्राइव आउट कर सकते हैं. तो ये भी इसका एक एडवांटेज है. इफ़ द पाइल्स आर कास्ट एंड रेडी टू ड्राइव ऑन बिफोर द इंस्टॉलेशन फेज इज ड्यू, इट कैन इंक्रीज द पेस ऑफ वर्क. तो ऑब्वियसली द पाइल्स अगर ईजिली अवेलेबल है, तो हम तुरंत मशीनरी की हेल्प से उसको क्या कर सकते हैं, सॉइल के अंदर प्लेस कर सकते हैं. तो इसके क्या हुआ, वो जो काम है उसकी स्पीड काफ़ी बढ़ गई, तो ये इससे पेस ऑफ वर्क भी बढ़ा. तो जहाँ पे काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, तो वहाँ पे हम प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट, द कन्फाइंड ऑफ द रेनफोर्समेंट कैन बी इंश्योर्ड एंड द क्वालिटी ऑफ पाइल कैन बी कंट्रोल्ड. क्वालिटी हमको पाइल की कितनी चाहिए वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. इफ़ एनी फॉल्ट इज़ आइडेंटिफाई इट कैन बी रिप्लेस. तो ये भी एक एडवांटेज है कि अगर पाइल में किसी तरह का कोई डिफेक्ट है तो हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं बिफोर यूज़. प्री कास्ट पाइल कैन बी ड्राइवन अंडर द वाटर. तो ये एक मेजर
एडवांटेज है प्रीकास्ट पाइल का कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर है उसके आसपास क्या है, वाटर है, तो वहाँ पे फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एज अदर टाइप ऑफ फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर आसपास वाटर है। तो इन दैट केस जो प्रीकास्ट है, पहले से बनी बनाई कंक्रीट पाइल से, उनको हम ईजिली मशीनरी की हेल्प से वहाँ पे सॉइल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पे कि आसपास क्या हो, वाटर ज़्यादा हो। देन दिस पाइल कैन बी लोडेड इमीडिएटली आफ्टर इट इज़ ड्राइवन अप टू द रिक्वायर्ड लेंथ। तो ये सब हो गए एडवांटेज कॉन्क्रीट पाइल के, प्रीकास्ट कॉन्क्रीट पाइल के। नेक्स्ट लेते हैं डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेज क्या होगा, वंस द लेंथ इज़ द पाइल इज डिसाइडेड इट इज़ डिफिकल्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ द पाइल। एक बार आपने पाइल का मैन्युफैक्चरिंग कर दी तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, इस काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि उसकी साइज़ को कम ज़्यादा करा जा सके। दे आर डिफ़िकल्ट टू मोबिलाइज, नीड हैवी एंड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट टू ड्राइव। अब इन पाइल को इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, हैवी इक्विपमेंट्स की, मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो एक इसका डिसएडवांटेज है। एज दे आर नॉट अवेलेबल फॉर रेडीमेड पर्पज़ इट कैन कॉज ए डिले इन द प्रोजेक्ट। अगर ईजिली अवेलेबल नहीं है आसपास से, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काफ़ी दूर है, जो इसका ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका प्रोजेक्ट है वो डिले हो सकता है। देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकेज और डैमेज ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ड्राइविंग ऑफ ओल्ड पाइप्स। तो क्या होगा, हैंडलिंग करने में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कंस्ट्रक्शन साइट तक लाने में क्या हो सकता है, मे बी देयर इज़ ए चांस कि पाइल क्या हो, डैमेज हो सकती है। तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट क्या है, कास्ट इन सीतू। कास्ट इन सीतू मत कॉन्क्रीट पाइल्स, मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है वहीं पे पाइल्स को, कंक्रीट पाइल को आप मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ पाइल इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय बोरिंग ऑफ सॉइल। बोरिंग ऑफ सॉइल मतलब क्या, सॉइल को बोर आउट करना है एट द डिज़ायर्ड डेप्थ। जितनी डेप्थ की हमको पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करानी है उतनी क्या करनी पड़ेगी हमको, सबसे पहले सॉइल को बोर आउट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट को उस बोर के अंदर हम प्लेस करेंगे और क्योरिंग के लिए छोड़ देंगे। जितना भी क्योरिंग पीरियड है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, उतने दिन हमको उसको क्योर करना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ पाइल इज कंस्ट्रक्टेड आइदर बाय ड्राइविंग ए मेटलिक शेल टू द ग्राउंड एंड फिलिंग इट विद कंक्रीट एंड लीव द शेल विद द कंक्रीट, और द शेल इज पुल्ड आउट विद वाइल कंक्रीट स्पॉट। तो हमने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा होगा, जैसे कॉलम प्रोवाइड कराते हैं तो उसके आजू बाजू हम क्या कराते हैं, सबसे पहले क्या एक केज प्रोवाइड कराते हैं। तो उसकी वजह से उस केज को प्रोवाइड कराते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर कंक्रीट को फिल करते हैं। और जब कंक्रीट कैसी हो जाए, क्योर हो जाए, हार्ड हो जाए, तो उसके बाद हम उस केज को हटा देते हैं। आपने कॉलम मैन्युफैक्चरिंग में देखा ही होगा। तो बिल्कुल वैसा ही कंक्रीट पाइल के अंदर भी कास्ट करते हैं, तो वैसे होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक जैसे जितना जहाँ पे भी हमको कंक्रीट पाइल प्रोवाइड करानी है वहाँ पे वो सॉइल को डिग आउट कर देंगे, बोर कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम आजू बाजू एक लकड़ी का कह सकते हैं या फिर आयरन का कह सकते हैं, एक सांचा प्लेस करेंगे और उस सांचे के अंदर हम क्या करेंगे, बाद में कंक्रीट को फिल करेंगे। और जब क्या कंक्रीट हार्ड हो जाए, क्योर हो जाए, तो हम उसको सांचे को वापस बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से आपकी कंक्रीट पाइल तैयार हो जाएगी साइड के ऊपर। तो एडवांटेज ऑफ द कास्ट इन सीतू पाइल क्या हो सकती है, दे शेल आर लाइट वेटेड सो दे आर इजी टू हैंडल। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द पाइल कैन बी वेरिड ईजिली। तो ये इसका एडवांटेज है बड़ा कि लेंथ ऑफ द पाइल कैसे हो सकते हैं, हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि प्री कास्ट में नहीं कर सकते थे। जब को जितनी लेंथ चाहिए उतना हम डिग आउट करें सॉइल को, उतनी हम कंक्रीट वहाँ फिल करेंगे और उतनी हमको पाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या होता है, द शेल मे बी असेंबल एट साइट। ठीक है, तो शेल्स होती है आसपास की, जैसे कि देख सकते हैं आप ये रहा डायग्राम। सबसे पहले क्या करा, ये सॉइल डिग आउट करिए, उसके अंदर ये शेल को आज प्रोवाइड कराया, फिर रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कराया और रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करा दिया। उसके बाद क्या करा, मिक्सर से कंक्रीट को फिल कर दिया। तो 3 स्टेज हो गई, पहले डिग आउट किया, फिर से वो शेल को प्रोवाइड कराया, फिर उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराई और फिर उसके बाद में उसमें क्या करा, कंक्रीट को फिल कर दिया। सो नो एक्सेस रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डैमेज फॉर हैंडलिंग, no possibility of breaking during installation,
तो अब इंस्टॉलेशन जब साइट के ऊपर ही होगा, डायरेक्ट जहाँ पे यूज़ आना है वहीं पे इंस्टॉलेशन, वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो इंस्टॉलेशन के अंदर किसी तरह का ब्रेकिंग होने के चांस नहीं होते। एडिशनल पाइल कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड ईजिली इफ रिक्वायर्ड। अब पाइल्स की, एक्स्ट्रा पाइल्स की जितने पहले डिज़ाइन के हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट थी, अगर उससे ज़्यादा भी पाइल्स की हमको ज़रूरत पड़ रही है तो हम ईजिली हमारे लिए अवेलेबल है एट द साइट। डिसएडवांटेज ऑफ कास्ट एंड सीतू पाइल क्या होती है, तो डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि इंस्टॉल रिक्वायर केयरफुल सुपरविज़न। तो क्या होगा, केयरफुल सुपरविज़न हमको देखना पड़ेगा जबकि हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल पे भी हमारा देखना बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी कंट्रोल कैसा है। नीड सफिशिएंट पैलेस ऑन साइट फॉर स्टोरेज ऑफ द मटेरियल। जैसे हमको साइट के ऊपर ही कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए हमको जो रॉ मटेरियल है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो एक साइट के ऊपर स्टोरेज के लिए स्पेसिफाइड या सफिशिएंट प्लेस होना चाहिए। नेक्स्ट का, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट कास्ट इन सीतो पाइल्स वेयर अंडरग्राउंड वाटर फ्लो इज़ हैवी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि क्या हो, जब क्या अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल हो किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है, कास्ट इन सीतू कंक्रीट पाइल्स को इस्तेमाल करना मुश्किल है। तो वहाँ पे हम किसको इस्तेमाल करते हैं ऐसी कंडीशन में, जैसा कि एडवांटेजेस था वहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे, प्रीकास्ट टाइप की पाइल्स को। तो ये इसका हो गया डिसएडवांटेज। इफ़ द बॉटम ऑफ पाइल्स मे नॉट बी सिमेट्रिकल, तो जब कास्ट इन सीतू करते हैं तो क्या कभी कभी क्या होता है, बॉटम ऑफ द पाइल क्या हो सकते हैं, सिमेट्रिकल नहीं होते। नेक्स्ट क्या होता है, इफ़ द पाइल इज़ अनरेनफोर्स एंड अनकेस्ड द पाइल कैन फेल इन टेंशन। तो अगर हम इसके अंदर रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड कराएंगे, इसको अगर केज नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, तो क्या हो सकता है, पाइल कैसे हो सकती है, फेल हो सकती है टेंशन के अंदर। क्योंकि हम जानते हैं कंक्रीट कैसे होती है, कंक्रीट टेंशन के अंदर फेल हो जाती है, तो इसलिए उसके अंदर रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अगर रेनफोर्समेंट और नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो पाइल में भी फेल इन द टेंशन। तो ये सब हो गए डिसएडवांटेज कास्ट इन प्लेस टाइप ऑफ कंक्रीट पाइल के। नेक्स्ट टाइप ऑफ पाइल होता है स्टील पाइल्स। स्टील पाइल्स क्या होती है, स्टील पाइल्स ऑफ द आई सेक्शन और होलो पाइप। यू सी इन द फिगर, दिस इज द आई टाइप ऑफ piles we are used, and this second figure you see the hollow pipe which is used as a piles. You see that I section piles, and you see that hollow pipes which is used in the pile foundation. So they are filled with concrete. Then the size may be vary 10 to 24 inches in diameter and thickness usually 3 to 4 inches. तो जो होलो पाइप्स है उसका डायमीटर 10 इंच से लेकर 24 इंच तक जा सकता है, और जो आई टाइप की जो पाइल्स है उनकी थिकनेस क्या हो सकती है, 3/4 इंच तक वेरी कर सकती है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल सेक्शनल एरिया द पाइल्स आर ईजी टू ड्राइव, दे आर मोस्टली यूज एज एंड बेयरिंग पाइल्स। तो जहाँ पे एंड बेयरिंग पाइल्स की इस्तेमाल की ज़रूरत है, जहाँ पे क्या हो, सॉइल की जस्ट नीचे जो लेयर है, जहाँ स्ट्रक्चर है उसके जस्ट नीचे जो लेयर है वो कैसी हो, सॉफ्ट हो, और एक हार्ड जो लेयर है वो कुछ डिज़ायर्ड डेप्थ के बाद में है, तो वहाँ पे यूज़ आती है एंड बेयरिंग पाइल। तो एंड बेयरिंग पाइल्स के लिए, एंड बेयरिंग पाइल्स का एक एग्जांपल कौन सा हो सकता है, स्टील पाइल। तो स्टील पाइल कहाँ यूज़ आ सकती है, जहाँ एंड बेयरिंग पाइल्स की ज़रूरत हो। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या होती है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी कम होता है, तो इसको क्या करना है, सॉइल के अंदर क्या करना, सॉइल के अंदर इनको प्लेस करना, ड्राइव इन द सॉइल बहुत ईजी होता है। तो ये इसका एडवांटेज होता है। तो एडवांटेज ऑफ द स्टील पाइल देख लेते हैं। दे आर ईजी टू इंस्टॉल फर्स्ट ऑफ ऑल, देन दे कैन रीच एट ए ग्रेटर डेप्थ कंपेयरिंग टू एनी अदर टाइप ऑफ पाइल। तो ये बहुत ज़्यादा गहराई तक भी हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इट कैन पेनिट्रेट थ्रू द हार्ड लेयर ऑफ सॉइल ड्यू टू लेक्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टील पाइल है तो ईजिली ये क्या कर सकते हैं, हार्ड सॉइल को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर के नीचे अगर हार्ड टाइप की सॉइल है, रॉक टाइप के फॉर्मेशन है, तो क्या उसको भी ईजिली पेनिट्रेट कर सकते हैं, जो कि दूसरे टाइप की पाइल्स फाउंडेशन में ये खूबी नहीं होती है।
नेक्स्ट क्या होता है, इट इज़ ईजी टू स्प्लाइस स्टील पाइल्स। नेक्स्ट क्या होता है, इट कैन कैरी हैवी लोड्स। तो स्टील पाइल्स होती है वो हैवी लोड्स को भी कैरी कर सकती है। तो ये सब हो गया इसके एडवांटेज। कुछ डिसएडवांटेज है वो भी देख लेते हैं। तो इसका क्या होता है, प्रोन टू कोरोजन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है स्टील पाइल की, इसमें कोरोजन हो सकता है। तो क्या कोरोजन का एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि थ्रेट है स्टील पाइल के लिए कि इट मे बी कोरोड। एंड नेक्स्ट क्या है, हैज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग वाइल ड्राइविंग। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है स्टील पाइल्स का। नेक्स्ट कंपोजिट पाइल, यू सी दैट कंपोजिट मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा मटेरियल को मिक्स करके किसी नए मटेरियल को बनाना। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कंपोजिट पाइल में क्या होता है, कंक्रीट एंड टिम्बर। तो इसमें हम क्या लेंगे, टिम्बर और कंक्रीट का कंपोजिशन। तो टिम्बर पाइल्स हैव स्मॉल बेरिंग कैपेसिटी, वी नो दैट, एंड नॉट परमानेंट अनलिस्ट ट्रीटेड। तो जब तक इनको ट्रीट नहीं करें तब तक ये कैसे होते हैं, नॉट बी यूजफुल। तो दे आर बी डैमेज बाय हार्ड ड्राइविंग। तो इनको जब हम ड्राइव करेंगे सॉइल के अंदर तो इस क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। इट शुड नॉट बी ड्राइवन थ्रू द हार्ड स्टार्टम और बोल्डर। जब क्या हो, स्टार्टम जो सॉइल का है वो कैसा हो, हार्ड हो, कोई रॉक टाइप का स्टार्टम हो या बोल्डर टाइप का स्टार्टम हो, तो उसको ये ईजिली पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो सच ए पाइल कंसिस्ट ऑफ ए लोअर पोर्शन ऑफ अनट्रीटेड टिम्बर। तो इन इस तरह के केसेस में क्या होगा, लोअर पार्ट कैसा होगा, अनट्रीटेड टिम्बर, और अपर पार्ट कैसा होगा, कॉन्क्रीट। सच पाइल आर सुटेबल वेयर द अपर पार्ट ऑफ द पाइल इज प्रोजेक्ट अबव द वाटर लेवल। जब क्या हो, अपर पार्ट क्या हो किसी भी सॉइल का, वो कहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा हो, जहाँ पे वाटर है। जैसे यहाँ पे ये वाटर है, ठीक है, तो ये पाइल को यहाँ से यहाँ तक पे डाला गया है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट, ये वाला पार्ट कैसा होगा, कंक्रीट का, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट होगा, ये किसका होगा, वुडन का। तो ये होती है कंक्रीट एंड टिम्बर पाइल्स। ज़्यादा यूज़ कहीं यूज़ नहीं आती, कुछ स्पेशल केसेस में यूज़ आती है। नेक्स्ट होता है कंक्रीट एंड स्टील पाइप। तो कंक्रीट फील्ड स्टील पाइप एंड स्टील एच पाइल्स आर यूज्ड एज लॉन्ग पाइल्स एंड हाई बेयरिंग कैपेसिटी पाइल। इन द केस ऑफ स्टील पाइल अटैच एट ए लोअर एंड ऑफ कास्ट इन सीटू कंक्रीट पाइल। तो कास्ट इन सीटू क्या होता है, पहले तो क्या कराएंगे हम, लोअर एंड में तो कौन सी पाइल प्रोवाइड कराएंगे, स्टील की, और इसके अपर हैंड पे कौन सी पाइल होगी, कास्ट इन सीटू। कास्ट इन सीटू मतलब जो कि साइड के ऊपर ही कास्ट की गई है, ठीक है, बाय यूजिंग फ्रेश कंक्रीट। तो इसके अंदर तो कंक्रीट एंड स्टील के अंदर तो कास्ट एंड सीटू कंक्रीट यूज़ होगी, और कंक्रीट एंड टिम्बर के अंदर कैसी होगी, प्री कास्ट टाइप ऑफ कंक्रीट यूज़ होगी। ये एक डिफरेंस है दोनों के बीच में कंपोजिट पाइल्स के अंदर। तो ये दो टाइप होते हैं कंपोजिट पाइल्स के। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पाइल फाउंडेशन है, जैसे कि लेटरल लोडेड पाइल्स क्या होती है, अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्ट वी कैन डिराइव दैट। नेक्स्ट होता है बोर्ड पाइल, जब हम सॉइल को बोर आउट करेंगे और जब हम फाउंडेशन करेंगे। तो बोर्ड पाइल के अंदर भी तीन टाइप के होते हैं, प्रेशर पाइल, अंडर रेम्ड पाइल और बोर्ड कॉम्पैक्शन पाइल। यूजुअली एग्जाम्स में इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, प्रेशर पाइल, व्हाट इज़ प्रेशर पाइल, व्हाट इज़ अंडर रेम्ड पाइल। तो ये सब किसके क्लासिफिकेशन है, बोर्ड पाइल के। इसके अलावा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है, वो होता है केस्ड कास्ट इन सीटू। केस्ड मतलब, केस्ड का मतलब होता है, पहले हमने केस प्रोवाइड कराया, वो जी लकड़ी का भी हो सकता है या स्टील का भी हो सकता है। इस केस के बाद फिर इसके अंदर हमने क्या कराया, कंक्रीट को फिल किया, तो क्या हो गया, केस्ड कास्ट इन सीटू। केस्ड कास्ट इन सीटू का पाइल्स के अंदर कितनी टाइप की पाइल्स होती है, कुछ नाम है, रेमंड पाइल, रेमंड स्टीप टीपर कंक्रीट पाइल, मैकआर्थर केस्ड पाइल, यूनियन मेटल मोनोट्यूब पाइल, स्वेज पाइल, वेस्टर्न बटन बॉटम पाइल। तो ये सब किसके टाइप्स हैं, केस्ड कास्ट इन सीटू टाइप के पाइल। नेक्स्ट होता है अनकेस्ड। अनकेस्ड मतलब जिसमें केस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली कंक्रीट को फिल कर रहे हैं। तो इसके कौन कौन से टाइप है, सिंप्लेक्स पाइल है, फ्रैंकी पाइल है, वाइब्रो पाइल है और पेडेस्टल पाइल है। तो ये सब किसके क्लासिफिकेशन है, या मतलब किसके एग्जाम्पल्स हैं, अनकेस्ड कास्ट एंड सीटू पाइल्स के। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के पाइल फाउंडेशन हैं जो यूज़ आते हैं इन द कंस्ट्रक्शन साइड, जिनके बारे में हम अगले वीडियोज़ में
डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दिस आर द टोटली ब्रॉडली क्लासिफिकेशन ऑफ द पाइल फाउंडेशन। थैंक यू।